Bismillahirrahmanirrahim. We have completed the first part of this lecture, which is manuscript writing for scientific publication and how to avoid common mistakes of English language while writing a manuscript. तो इसका फर्स्ट पार्ट हम जो है वो कर चुके हैं. Now we are proceeding towards the second part. Before going to the second part, just to summarize that we have discussed in the first lecture that writing in English, why it is important, overview of good writing, clear communication and high quality writing benefits क्या क्या हैं, then avoiding common language issues and Gopin and Sohan के जो key concepts हैं, using short sentences, keeping the verb and subject close together in sentences and using the topic and stress positions, topic position and stress positions to organize and link ideas within and between sentences. Concise writing क्या होती है? We should keep the sentence simple. Guidelines for concise writing, only one idea per sentence and prefer to use active voices rather than passive voices. And then concise writing examples, we have done the quiz, subject and verb placement we have completed and topic position we have discussed and topic position के बाद stress position यानी what we want the important message to convey at the end of the sentence, ये हमने complete कर लिए थे और इसका quiz भी complete कर लिया था. Now we are proceeding towards the comparison. अगर हम दो factors यानी दो चीज़ों को compare कर रहे हैं, how we can compare, what is the best way or what is the best language, English language we can use for the comparison. So comparisons are frequently made in the result or discussion section of the papers and these often involve words like what we use between, among, like, with and than. It is better than the other one. There is similarity between both patients or among treatment alternatives, like, with other options. इस तरह के words जो है comparison के लिए हम use करते हैं. Now when making a comparison, following points should be adhered to. और वो कौन से points पे हमें adhere रहना चाहिए? Only compare similar things that can be compared fairly. Like for example, अगर हम बात करें bad example, क्या हो सकती है इसकी और good example हमारे पास क्या हो सकती हैं इस comparison की. Like for example here, what we are discussing or saying, the brain activity in patient A was compared with the patient B. अब इससे कुछ इस तरह का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि ब्रेन एक्टिविटी पेशेंट ए की कंपेयर हो रही है पेशेंट बी से, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है कि पेशेंट बी की किस चीज़ से एक्टिविटी कंपेयर की जा रही है. यानी इसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि ये दरअसल ब्रेन एक्टिविटी कंपेयर की जा रही है पेशेंट ए की पेशेंट बी के ब्रेन एक्टिविटी से. तो इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में लिखने का तरीका ये होगा, द गुड एग्जाम्पल, द ब्रेन एक्टिविटी इन पेशेंट ए वॉज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ पेशेंट बी. यानी जो ब्रेन एक्टिविटी है पेशेंट ए की वो पेशेंट बी के उसी हिस्से की यानी ब्रेन एक्टिविटी की जो है पेशेंट बी की उससे कंपेयर की जा रही है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट the key point which we are getting from these both examples, it does not make sense to compare brain activity with person, जो कि यहाँ पर bad example में हो रहा है. Instead we need to compare like with like, that is brain activity in patient A with the brain activity of patient B. In the second example, the good example, it is very clear that we are talking about we are comparing the brain activity of patient A and patient B, जो कि यहाँ पर bad example पे ये क्लैरिटी हमें नहीं मिल रही है. अच्छा, फिर उसके बाद when making comparison, the following points should be adhered to another example. अब यहाँ पर थोड़ा सा गुड और बेटर है कि जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो भी ठीक है. ओनली कंपेयर सिमिलर थिंग्स दैट कैन बी कंपेयर्ड फेयरली. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेशन लेवल ऑफ P53 जो कि एक जीन होता है इन स्मोकर्स वर कंपेयर्ड विद द P53 लेवल इन नॉन स्मोकर्स. ठीक है, एक हद तक सही है, लेकिन अगर इसको हम इस तरह से करें तो यह ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल है. एक्सप्रेशन लेवल्स ऑफ P53 इन स्मोकर्स वर कंपेयर्ड विद दोज इन नॉन स्मोकर्स. अब दिस इज मच बेटर सेंटेंस
एंड यहाँ पे जो नोट करने का पॉइंट है हियर, दोज मीन्स यानी ये जो है एक्सप्रेशन लेवल ऑफ P53, इट्स बेस्ट नॉट टू रिपीट द सेम वर्ड इन ए सेंटेंस सिंस इट कैन बोर द रीडर्स, जो कि यहाँ पर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरे अंदाज से जो है वो इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो कि रीडर को बोर नहीं करेगा। तो इससे आपकी जो राइटिंग होगी उसमें और इफेक्टिवनेस आ जाएगी। नाउ अनदर, अवॉइड बीइंग वेग, बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, यानी वेग वर्ड्स को यूज़ करने से आप अवॉइड करें। अब उसकी एग्जाम्पल्स अगेन हमारे पास गुड एग्जाम्पल भी है, बैड एग्जाम्पल भी है, और जो पॉइंट नोट करने का वो भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बैड एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, रिएक्शंस with the new machine were faster, reactions with the new machine were faster। अब ठीक है भाई, कौन से रिएक्शन की बात हो रही है जो फास्टर हो रहे हैं? अब यहाँ पर है रिएक्शंस विद द न्यू मशीन वर फास्टर देन दोज विद द ओल्ड मशीन। भाई ओल्ड मशीन से कंपेयर करके बताया जा रहा है कि जो रिएक्शन है नई मशीन से वो फास्टर है। सो द फर्स्ट सेंटेंस मेक्स द रीडर वंडर फास्टर देन वॉट। यहाँ पर हमें ये नहीं पता चल रहा कि आखिर फास्टर देन वॉट, किस चीज़ से फास्टर की बात हो रही है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंपेयर इन ए गुड वे, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी एग्जाम्पल देके हमें समझाने की कोशिश की है। नाउ वर्ड सच एज, जो कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं, वर्ड सच एज रिड्यूस्ड, इंक्रीज और डिक्रीज कैन ओनली बी यूज टू कंपेयर समथिंग टू द वे दैट इट वॉज बिफोर, नॉट टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। To compare two different things, that is group of patient, use words such as higher, shorter or more। यानी group of patients को अगर compare करना है तो higher, shorter और more से it is much better comparison rather than the word reduce, increase या decrease। अब फिर यहाँ पर हमारे पास bad example और good example मौजूद है कि हम किस तरीके से जो है वो इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं कि हम जो whenever we are writing manuscript, what we do, what mistake we do, and that results in bad example, and what we should do to show a good example. What is bad example? In our study, hibernation was reduced in the experimental group. Okay, in our study, hibernation was reduced in the experimental group compared with the कंट्रोल ग्रुप। अब इसको और ज़्यादा बेहतर अंदाज में कैसे लिखा जा सकता है? इन अवर स्टडी टाइम अंटिल हाइबरनेशन वॉज शॉर्टर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप देन द कंट्रोल ग्रुप। अब यहाँ पे हाइबरनेशन वॉज रिड्यूस, एक क्लैरिटी नहीं है भाई हाइबरनेशन से क्या मतलब है आपका रिड्यूस से। यहाँ पे क्लियर है कि टाइम अंटिल हाइबरनेशन, यानी हाइबरनेशन का जो टाइम है वो शॉर्टर है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कंपेयर टू द और देन द कंट्रोल ग्रुप। So note reduce cannot be used to compare two different things, that is the experimental group and control group। तो इस तरीके से हम अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और जिससे हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ सकती है। अच्छा, कंपैरिजन के बाद द अनदर थिंग इज द प्रॉपर नाउन, हाउ वी कैन यूज प्रॉपर नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन और नाउन क्या होते हैं? A noun is a word that refers to a person, thing or idea. We are studying this sentence since our childhood in a book of English grammar। कि noun क्या है? एक word है जो कि किसी person के को represent करता है, किसी चीज़ को, किसी idea को, a person, thing or idea। And a proper noun is the specific name of a person, organization or location। जबकि इसके बरक्स proper noun क्या होता है? वो कोई इस खास नाम होता है, स्पेसिफिक नेम है ऑफ ए पर्सन, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल पर्सन, आई वुड से माय ओन नेम डॉक्टर शेख, ऑर्गेनाइजेशन हमदर्द यूनिवर्सिटी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और एनी अदर कंपनी, लोकेशन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। प्रॉपर नाउन ऑलवेज हैव देयर फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड। दिस इज द मिस्टेक even I have observed in many manuscripts, because I am also a reviewer for many journals and I receive manuscript for reviewing purposes, and I observed this problem that the writer do not use capital letter
before the proper noun and they start with the small letter, which is wrong. It is a rule of English, whenever you are using the proper noun, so you should start with the capital letter. The first letter should be capital. So we should be careful about it whenever we are writing manuscript. Now, examples when to capitalize. The first and last name of a person, for example, Gillian Welch, Steve Jobs, Francis Crick, these are the examples of the name. Okay, first and last name both, it should start with the capital letter. Name of the companies and organization should also be started with the capital letter, like United Nations, Toyota, GlaxoSmithKline. Countries and cities, for example, Australia, Pakistan, New York, ये city हो गया, country हो गए, London. Month of the year and days of the week should also be started with the capital letter, like January, August, Monday, Saturday, ये month हो गए, and then the day, they also should be started with the capital letter. ये जो छोटी छोटी सी इंग्लिश की मिस्टेक्स होती हैं वो हम मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में कर रहे होते हैं, जिसका ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या होता है कि सम टाइम आवर आर्टिकल इज रिजेक्टेड फ्रॉम ए वेल रेप्यूटेड गुड और हाई क्वालिटी जर्नल. नाउ examples when not to capitalize. This problem sometime also I have observed in many manuscripts whenever reviewing it, कि जहाँ पे कैपिटलाइजेशन नहीं करनी चाहिए, फर्स्ट लेटर शुड नॉट बी कैपिटल, वहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है. लाइक फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ केमिकल और जेनेरिक ड्रग्स, मीन्स कोई कॉमन चीज़ है, सो वी शुड नॉट यूज कैपिटल वर्ड. लाइक हेयर इन बेंजीन यू स्टार्ट विथ small letter, acetaminophen, which is basically paracetamol, so start with the, it is a generic drug, it should start with the small letter. तो ये चीज़, इन चीज़ों का ख्याल रखना हमें ज़रूरी है. Now another important thing is the use of article in our manuscript. Articles क्या होते हैं? There are 3 articles in English, a, an and the. ये 3 आर्टिकल हम यूज़ करते हैं. These are classified as indefinite article यानी a and और definite article the. तो यानी जिस चीज़ में हम श्योर नहीं होते वहाँ पे a और and लगाते हैं, और कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है जिस पे एम्फेसाइज करना होता है, वी आर श्योर डेफिनेट, फिर वहाँ पे हम यूज़ करते हैं the. Indefinite articles refer to not specifically known to person you are communicating with. यानी ये वहाँ पे जो है वो हम लगाएंगे indefinite article जहाँ पे स्पेसिफिकली नॉट स्पेसिफिकली नोन टू पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद. इन अदर वर्ड्स ए एंड आर यूज बिफोर नाउन्स, यानी जो क्योंकि नाउन जो होता है वो एक कॉमन चीज़ होती है, पर्सन, प्लेस, आइडिया, तो वहाँ पर हम जैसे कहते हैं एन आइडिया, ए पर्सन, ए लोकेशन, that introduce, so we use a and r before noun that introduce something or someone you have not mentioned before. वहाँ पर हम ये a and n को use कर सकते हैं. तो key point is that we should use a and n before noun. Whenever we are using the noun, always we should use a and n, a और n before the noun. अब a और n में फ़र्क क्या होगा ये हम अभी आगे चल के देखेंगे. और या फिर समवन यू हैव नॉट मैंशन बिफोर, वहाँ पर भी ए एंड को हम यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल में. नाउ एग्जाम्पल्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विटनेस एन एक्लिप्स दिस मॉर्निंग. आई विटनेस एन एक्लिप्स दिस मॉर्निंग, एन एक्लिप्स. आई रोट ए लेबॉर्ट्री रिपोर्ट बिफोर लंच. आई रोट ए लेबॉर्ट्री रिपोर्ट बिफोर लंच. अगर ये होता आई रिपोर्ट CBC रिपोर्ट बिफोर लंच यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, तो फिर होता आई रिपोर्ट द CBC काउंट और कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट बिफोर लंच, क्योंकि वो अब स्पेसिफिक है कंप्लीट ब्लड काउंट, तो वो इसलिए उसके पहले हम दा लगाएंगे. लेकिन अब क्योंकि ये जर्नल लेबॉर्ट्री जो है नाउन है, दैट इज वाई वी शुड यूज ए. नाउ द अनदर एग्जाम्पल pertaining to article is if we talk about eclipse के बाद, the another example is a and n also used when you are talking about your profession. Okay, when you are
talking about your profession. Like for example, I am an artist, I am a researcher. तो यहाँ पर भी जो है वो हमें इन आर्टिकल्स को हम यूज़ कर सकते हैं. तो जब भी हम राइटिंग करें तो हम सिर्फ जैसे हमने कहा आई एम फार्मासिस्ट, आई एम ए फार्मासिस्ट, नाउ दिस इज करेक्ट. आई एम researcher, no it is not correct. I am a researcher, now it is correct English. So we should be careful about it while writing manuscript. Another example, use a when the noun are referring to a start with the consonant sound when pronoun. For example, a city, a factory, a hotel, a university. तो यहाँ पर भी हम जो है वो की जो है वो जो जो है वो उसको यूज़ करेंगे. इस सिचुएशन में भी ये अप्लाई होगा कि वी शुड यूज़ आर्टिकल इन दिस वे. सिटी कोई भी यानी नाउन के साथ उसमें जो है शुरू में यूज़ करेंगे. नाउ इफ द वर्ड बिगिन विथ वॉवेल साउंड व्हेन प्रोनाउंस्ड देन यूज ए एन, यानी वॉवेल साउंड होगी. लाइक फॉर एग्जांपल एन आवर, एन अम्ब्रेला, एन आउल, एन इग्लू. तो वहाँ पर वॉवेल साउंड के साथ इट इज़ अगेन रूल ऑफ इंग्लिश के वी शुड यूज़ ए एन वी यूज़ दिस आर्टिकल ए एन एन, लाइक एन आवर, एन अम्ब्रेला, एन आउल, एन इग्लू. तो ये जो है रूल भी हमें, यानी दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आ एंड एन, मीनिंग दोनों के सेम है. नाउ यूज़ द when you know that the reader or listener knows or can identify what particular person or thing you are discussing. ठीक है, यानी कहाँ कहाँ दो जगहों पे हम दा को यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग दैट व्हेन यू नो दैट द रीडर और लिसनर नो जो भी आप बताना चाह रहे हैं, और कैन आइडेंटिफाई व्हाट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग यू आर डिस्कसिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट्स वर कन्फर्म्ड. ये क्या है कि रीडर को पता है कि अब आगे क्या आप डिस्कस करने जा रहे हैं. द रिजल्ट्स की बात हो रही है. डिड यू अनलॉक द डोर. ठीक है, यानी हमने किसी ऐसी चीज़ की स्पेसिफिक चीज़ की बात की है. डोर, एवरीवन नो व्हाट इज़ डोर, तो वहाँ पर भी हम डिड यू अनलॉक द डोर. तो इस तरीके से हमें whenever we are writing, we are using the sentences in manuscript writing, we should be careful about use of these articles in a proper way. अच्छा, और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें फॉर द यूज़ ऑफ द, यू शुड ऑल्सो यूज़ द व्हेन द थिंग्स यू आर डिस्कसिंग हैज़ बीन मेंशन प्रीवियसली. फॉर एग्जाम्पल, ईच वेक्टर एनकोडेड ए प्रोटीन विथ ए डिफरेंट रिसेप्टर मॉलिक्यूल. ये एक सेंटेंस है कि ईच वेक्टर एनकोडेड ए प्रोटीन. अब ये आर्टिकल आ यूज़ हुआ है यहाँ पे, जर्नल प्रोटीन की बात हो रही है, विथ ए डिफरेंट रिपोर्टर मॉलिक्यूल. अब क्या हो रहा है, द साइज ऑफ द प्रोटीन वॉज सो एंड सो, यानी इस प्रोटीन की बात हो रही है ना, कि जिसको हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और रीडर को पता है कि अब किसकी कौन सी प्रोटीन की बात हो रही है. तो द साइज ऑफ द प्रोटीन वॉज सो एंड सो. तो ये भी एक आर्टिकल को यूज़ करने का, द को यूज़ करने का अप्रोप्रिएट प्लेस एक टेक्निक है. वी ऑल्सो यूज द व्हेन टॉकिंग अबाउट जियोग्राफिकल फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, the English Channel, the Himalayas. So in all these places geographical features जहाँ पे यूज़ हो रहे हो वहाँ पर भी हम it is better to use. The sentence will look more professional and more affable when we will use the word the before such type of in such type of sentences where we are mentioning geographical features. Now another example of article, we also use the preceding certain nouns when it is known that there is only one of something. For example, यानी वो एक ही जो है पूरी यूनिवर्स में या हर जगह एक ही एग्जिस्ट करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, द सन, द वर्ल्ड, द इम्पेरियल पैलेस, द पैसिफिक ओशन. तो क्या है इसमें खूबी क्या है कि ये क्या है, देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग, यानी वो एक ही है, अपनी यूनिक चीज़ है. दैट इज़ वाई we should use this article before such type of words. और यह आर्टिकल यहाँ पर यूज़ होगा. अच्छा, now the another thing is that the use of word
respectively. Many researchers, they use it in a poor way. Respectively is an adverb. First thing is that it is adverb that is often misused by non-native English speaker. जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि इसको मिसयूज किया करते हैं नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर. इट मीन्स इन ऑर्डर गिवन. Respectively means in the order given and should only be used if your sentence would be unclear without it, and use respectively only in this case when your sentence is not clear unless you use this word respectively. यानी उसकी क्लैरिटी सेंटेंस की जब ही आएगी जब आप respectively का वर्ड यूज करेंगे, यानी कोई सर्टेन ऑर्डर में कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, oxygen, nitrogen and hydrogen detector flows. Oxygen, nitrogen and hydrogen detector flows were set at 85, 7 and 4 ml per minute respectively. कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिटेक्टर फ्लोज जो हैं वो सेट हैं 85, 7 and 4 ml per minute respectively. यानी 85 ml per minute, 7 ml per minute and 4 ml per minute. और जो 85 ml पर मिनट है वो ऑक्सीजन के लिए, 7 ml पर मिनट जो है नाइट्रोजन के लिए और 4 ml पर मिनट हाइड्रोजन के लिए है. इस रिस्पेक्टिवली से हमें ये समझ आ रहा है. इसको हम उर्दू में इस तरह से कहते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के डिटेक्टर फ्लो जो है वो सेट हैं 85, 7 और 4 ml पर मिनट बिल तरतीब. यानी रिस्पेक्टिवली के लिए जो हम उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं बिल तरतीब का वर्ड यूज़ करते हैं. तो इसको इस तरीके से बिल तरतीब से मतलब ये है कि 85 इसके लिए, 7 जो है नाइट्रोजन के लिए है, 4 जो है हाइड्रोजन के लिए. तो इस तरीके से जो होगा वो प्रॉपर वे में ये यूज़ होगा. द पॉइंट विच शुड बी नोटेड हेयर, द यूज ऑफ रिस्पेक्टिवली हेयर मेक्स इट क्लियर दैट द फर्स्ट गैस मेंशन गोज विद द फर्स्ट नंबर. यानी ये फर्स्ट गैस जो होगी फर्स्ट नंबर के साथ है 85. द सेकेंड गैस गोज विद द सेकेंड नंबर यानी नाइट्रोजन विद 7 and the third gas goes with the third number यानी हाइड्रोजन with 4 जो कि थर्ड नंबर है यहाँ पे. So this is what we understand from this sentence if we use the word respectively at appropriate place. Now more examples of respectively. Again the bad example and the good example. हमारे पास bad example क्या है और good example क्या है. तो first let me highlight these bad examples and good examples and then we will discuss. Now in this slide what we are going to discuss, first the bad example. The two values were 143.2 and 21.6 respectively. ये क्या बात है कि दो वैल्यूज़ हैं बिल तरतीब 143.2 and 21.6 रिस्पेक्टिवली, लेकिन किस चीज़ की वैल्यू है ये तो क्लियर नहीं हो रहा इससे. मीन सेंटेंस इज रॉन्ग. द टू वैल्यूज वर 143.2 एंड 21.6. अगर हाँ ऐसे सेंटेंस में रिस्पेक्टिवली वी कैन नॉट यूज, यानी हेयर द वर्ड रिस्पेक्टिवली हैज बीन मिसयूज्ड. अनदर एग्जाम्पल, बैड एग्जाम्पल, द टू ट्यूब्स वर लेबल्ड बी एंड एस रिस्पेक्टिवली. दो ट्यूब जो है वो लेबल बी और एस रिस्पेक्टिवली हैं. ये भी क्लियर, इसमें भी क्लियरिटी नहीं है. लेकिन अब इसको देखें, द टू ट्यूब्स कंटेनिंग ब्लड एंड सेलिन वर लेबल्ड बी एंड एस रिस्पेक्टिवली. यानी दो ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स, जिसमें एक में ब्लड है और एक में सेलिन है. जो ब्लड वाली है उसको बी और जो सेलिन वाली है उसको एस जो है वो बिल तरतीब लेबल किया गया है. नाउ द सेंटेंस इज क्लियर. सो वी डू सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स इन आवर writing and then at the end we feel regret or the journal send you the regret note that regretfully we cannot accept your article. Now the another thing is that important point is spellings. Should you use UK or as US spelling? This is a question. What you are writing? Are you writing in UK English or US English? Check the journal's instruction for authors to find out which spelling journal requires. Many journal they mention clearly that what kind of English they expect from you or what English should be written on the journal. But in many cases the journal will accept either form, either
British, UK or US form. Just remember to be consistent with the spelling throughout your manuscript. अब consistent से क्या मतलब है? Means कि if you are using in the beginning of your manuscript you are using British English, but later on in methodology or at the end of the discussion section you are using US English. In the beginning, introduction, you are using UK English. In results and discussion you are using US English. So it is not consistent. It will make the confusion to the reader as well as reviewer. तो इसको अवॉइड करना ज़रूरी है कि आप जो भी इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट आर्टिकल वो एक ही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल US स्पेलिंग्स, UK स्पेलिंग. US स्पेलिंग में दिस इज फाइबर FIBER एंड UK FIBRE. सेंटर CENTER इन US, UK में CENTRE. लेबलिंग भी इसी तरह से LABELING एंड LABELLING. कलर COLOR US है, COLOUR UK स्पेलिंग है. तो अब अगर आपने मिसाल के तौर पर अगर आप फाइबर की बात कर रहे हैं, आपने पता चला इंट्रोडक्शन लिखा और उसमें आपने फाइबर के लिए और सेंटर के लिए ये वाली स्पेलिंग यूज़ की, लेकिन जब आप रिजल्ट्स और डिस्कशन लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप ये स्पेलिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कंसिस्टेंसी नहीं है. यू शुड यूज़ थ्रू आउट योर मैन्यूस्क्रिप्ट सेम पैटर्न ऑफ इंग्लिश, आइदर यूज US स्पेलिंग्स और UK स्पेलिंग्स. तो इस चीज़ का जो है वो हमें ख्याल रखना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पंक्चुएशन. In punctuation, the colon and semicolon are two punctuation marks that are often misused in manuscripts. कॉमा की बात नहीं कर रहे वो, और किसी पंक्चुएशन मार्क की बात नहीं कर रहे. फुल स्टॉप यू यूज करेक्टली, कॉमास यू यूज करेक्टली, लेकिन समटाइम्स colon and semicolon, the authors of many manuscript, they misuse it. अच्छा, a colon is used to introduce a list or a clause that explains the clause before the colon. यानी जो colon लगाने से पहले उसको explain करना है कि वो किस चीज़ की बात हो रही है, और फिर उसके clauses या list आपने देनी है. Example, there are number of health sciences journals that accept manuscript dealing with pharmaceutical sciences. अब देखें, there are number of health sciences journal that accept manuscript dealing with the pharmaceutical sciences and then use the colon. कि अब वो ये कह रहे हैं क्या आपने किया है कि यूज टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, बट उससे पहले दैट एक्सप्लेन्स द क्लॉज बिफोर द कॉलन. यानी इससे पहले आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जर्नल्स की बात कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल साइंसेज की. अब इसके बाद फिर लिस्टिंग कर दी, लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज कॉमा, इसरा मेडिकल जर्नल कॉमा, लैटिन अमेरिकन जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड +1 और कॉमा करके, और भी आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं और भी लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं. तो कॉलन हम जब भी यूज़ करें उससे पहले हम उसके रीजंस बता दें, यानी जो वाई व्हाट वी हैव डिस्कस्ड एक्सप्लेन बिफोर, और फिर उसके बाद उसकी लिस्टिंग कर दें. तो ये जो है वो तरीक़ाकार होता है. नाउ यूज़ ऑफ सेमी कॉलन, ये कॉलन की बात हो गई. नाउ टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और द क्लॉजेस दैट could be complete sentences by themselves, and if you do not use a connecting word like and or while between them. आपने दो अलग अलग सेंटेंसेज हैं लेकिन दोनों का आपस में एक कनेक्शन भी है, और यू कैन नॉट कनेक्ट द सेंटेंस, यू डू नॉट वांट टू कनेक्ट द सेंटेंसेज वाइल यूजिंग एंड और वाइल, इनको यूज करते हुए, तो फिर आप सेमीकोलन यूज करते हैं. टू सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट, इफ सम आइटम्स इन द लिस्ट हैव कॉमास विद इन दैम, वहां पे भी यूज कर सकते हैं कॉमास को की जगह पे. In other words, semicolon are used instead of commas if commas would be confusing. यानी जहाँ पे commas जो है वो confusion create कर रहे हो, वहाँ पे हम semicolon भी use कर सकते हैं. जैसे many journals they ask you to write, जो कि abstract के बाद होता है, आपने देखा होगा कि abstract लिखने के बाद keyword लिखने होते हैं. Many journals they ask you to write different keywords and use semicolon in between different words. तो ये एक जो है वो मेथड होता है जो कि ज़्यादा क्लियर होता है. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकोलन, द पेशेंट वॉज अनरिस्पॉन्सिव, द पेशेंट वॉज अनरिस्पॉन्सिव सेमीकोलन, डॉक्टर्स वर रनिंग एवरीवेयर कैरिंग मेडिकल इक्विपमेंट. ठीक है, डॉक्टर्स वर रनिंग एवरीवेयर कैरिंग मेडिकल इक्विपमेंट. नोट करने का पॉइंट क्या है
These two clauses, अब ये दो अलग अलग बेसिकली clauses हैं या sentences हैं, but they are incomplete. They are linked together but by using colon. These two clauses could be separate sentences, यानी ये separate sentences भी हो सकते थे किस तरीके से? The patient was unresponsive, full stop. अब आप देखें यहाँ full stop लगा दिया. Doctors were running everywhere carrying medical equipment. ठीक है, तो ये है. But the thing which should be noted, however, the semicolon suggests that there is a relationship between these two sentences. ये सेमीकोलन हमें बता रहा है कि इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान में रिलेशनशिप है. सो यू कैन यूजुअली टेल फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट दैट व्हाट द एक्चुअल रिलेशनशिप इज. तो इस कॉन्टेक्स्ट से अगर हम इसको यूज कर रहे हैं सेमीकोलन से, तो दरअसल हम यहाँ पे दोनों की जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ पंक्चुएशंस, मोर एग्जाम्पल्स. शी वर्क्स ऑल डे एज नर्स in a retirement home, and then we use the semicolon. She works all day as nurse in a retirement home. She is semicolon. She is studying in the evening to become a doctor. तो ये हमने इसको लिंक को जोड़ा. एक और एग्जाम्पल, the Dr. Binod is a French researcher, semicolon. However, he lives in Antarctica. Another example, thousands of mites cross the barrier from region A to region B every hour. Thousands of mites cross the barrier from region A to region B every hour, and then semicolon. Therefore, it was not possible to count all of them. तो ये इस तरीके से लिंक बना के दोनों सेंटेंस का आपको सेमीकोलन का यूज की एग्जाम्पल बताई गई है. Our main objectives were that uninsured patients are most likely to visit the emergency room for their health care needs. अब ये एक पहला पार्ट हो गया सेंटेंस का. हम जैसे रिजल्ट्स लिख रहे हैं, फाइंडिंग्स लिख रहे हैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट में कि आवर मेन फाइंडिंग्स वर दैट uninsured patients are most likely to visit the emergency room for their health care needs. Semicolon, that children, the elderly and the unemployed are the groups most affected by lack of insurance. कौन कौन से फिर बताया कि चिल्ड्रन, एल्डरली, अनएम्प्लॉयड जो ग्रुप्स होंगे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे लैक ऑफ अन इंश्योरेंस से. एंड दैट द फिर सेमीकोलन, एंड दैट द अनइंश्योर्ड आर हैवी बर्डन ऑन हॉस्पिटल्स. और फिर ये एक हैवी बर्डन होंगे, कॉस्ट बर्डन होंगे हॉस्पिटल पे. और किस तरीके से आप ये देखें कि ये यहाँ से लेके जो स्टार्ट था वहाँ से लेके पूरे पैराग्राफ में एक ही बात की गई है, लेकिन उन सेंटेंसेस को जो कनेक्शन किया गया है, जोड़ा गया है, वो बाय यूजिंग द सेमीकोलन. नाउ कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल लार्ज, स्मॉल एंड हाई एंड लो. Large and small are generally used to express variation or changes in size, dimensions or masses. High and low are usually used to express levels of or numerical values. तो जहाँ पे भी साइज, डायमेंशन और मास की बात आएगी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ड, यानी जहाँ पे भी साइजेस का कंपैरिजन करना हो, डायमेंशंस का कंपैरिजन करना हो, मास का कंपैरिजन करना हो, it is better to use word large or small for comparison. And whenever we are comparing or expressing the level or numerical values, better to use word high and low. So large and small are mistakenly used when high and low would be better. So what researchers does in their manuscript, जहाँ पे large यूज़ करना चाहिए वहाँ high यूज़ कर लिया, या high और large को जहाँ high यूज़ करना चाहिए था वहाँ large, जहाँ low यूज़ करना चाहिए था वहाँ small यूज़ कर लिया या था, या जहाँ small यूज़ करना चाहिए था वहाँ पे low यूज़ किया. तो इसको भी जो है वे we should not overlook. Examples of comparison, again bad example and good example. Bad example, a low amount of brain's capacity is needed for survival instincts. A low amount of brain's capacity. It is better, अब ये amount की बात हो रही है तो it is better to use word amount. A small amount, यहाँ पे better क्या हो गया, a small amount of brain's capacity is needed for survival instincts. तो अब ये देखें, अब लो और स्मॉल से दोनों के सेंटेंस में, क्वालिटी ऑफ सेंटेंस में कितना बड़ा फर्क पड़ गया. अब इसी तरीके से हाई और लार्ज का देख लेते हैं. बाइट एग्जाम्पल, ए हाई फ्लक्चुएशन इन एवरेज माइग्रेशन ऑफ गैजल्स वॉज डिटेक्टेड बिटवीन जून 4 and 18. ए हाई फ्लक्चुएशन इन एवरेज माइग्रेशन.
अब ये क्या है, ये फ्लक्चुएशन इन माइग्रेशन है, ठीक है, मासेस की बात की जा रही है कि वो क्या कर रहा है। वी डिटेक्टेड ए लार्ज फ्लक्चुएशन, ये यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए लार्ज। वी डिटेक्टेड ए लार्ज फ्लक्चुएशन इन एवरेज माइग्रेशन ऑफ गैजेल्स between June 4 and 18. So here again it is good example. तो यहाँ पर हम ये complete कर रहे हैं और now we are moving towards the quiz. If we talk about the quiz, now correct the comparison. What is correct comparison? The maple tree leaves were bigger than the oak tree leaves. The new sound dampeners were quieter than the previous one. Now you have time to think about it, and then I will show you that the which one is correct one. Now the time has completed. The correct answer is this one. The new sound dampeners were quieter than the previous one. It is more appropriate comparison. Here maple trees को compare किया जा रहा है oak tree से, means के it is not a good comparison. Now the another question, use of word respectively. The colors were blue and green respectively. जो colors थे वो blue और green थे बिलतरतीब respectively. Another, the trains to Boston and New York depart at 1:30 and 2:15 respectively. जो ट्रेन है बोस्टन और न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगी 1:30 और 2:15 पर बिलतरतीब या respectively. Now you have time to think about it for few seconds, and then I will answer the correct option. Now the correct answer is this one, कि ट्रेन जो बोस्टन और न्यूयॉर्क के लिए रवाना होगी 1:30 बजे और 2:15 पे रिस्पेक्टिवली, यानी 1:30 पे रवाना होगी बोस्टन के लिए और 2:15 पे न्यूयॉर्क के लिए. So this is the way to use the word respectively in a correct way. So this is the all about of my lecture part 2. We have completed it. Now here are the references which I have used for these 2 lectures, and I hope this lecture will help you out to improve your writing a manuscript in scientific journal, and it will help you out to avoid common mistakes. Thank you very much and good luck for your manuscripts.